Now coming to Article 19. Okay. So in the last class, we basically saw what is Article 19, and we also discussed what are the restrictions that can be imposed in 19.2 to 19.6. Okay. Now that is your homework to actually remember all the restrictions, because very, very possible chances that they can be asked. Now what we are going to actually see are the tests. ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में भी आई थिंक देख चुके थे कि अब जो बेसिक जो कोर्ट्स को डिसाइड करना होता है वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है क्या वो रीजनेबल है. ठीक है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन किन ग्राउंड्स पे लगाई जाएगी दैट इज वेरी क्लियर फ्रॉम 19.2 to 19.6. ठीक है, उसमें ग्राउंड्स दे रखे हैं कि किस फ्रीडम पे आप कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो. So the only question that can be there before the courts is कि whether the said restriction is reasonable or not. ठीक है, तो कैसे decide होता है कि whether it is reasonable or not, that is what we are going to see. Okay, so first of all, of course, it is the courts which decide, क्योंकि parliament can impose the restrictions, but ultimately it will be the court who will be judicially reviewing the law if it is challenged, and they will be finally deciding कि whether a said restriction is reasonable or not. ठीक है, अब सी रिस्ट्रिक्शन का क्या पॉइंट हो सकता है. if you think about it from a very common sense point of view, then you will know कि ultimately the freedom has to be given the maximum content, है ना. मतलब कि हमें restrictions ऐसे लगाने चाहिए जो मतलब जितना फ्रीडम को एक्चुअली रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर let's say Kashmir mein, in Jammu and Kashmir, when Article 370A was abrogated, at that point in time the government felt that we need to impose restrictions on communication channels so as to prevent the spread of fake news and all of that. So they basically imposed like an internet ban on that. ठीक है, अब अगर वो internet ban indefinite period के लिए होता, ठीक है, कि अगर उसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है, तो दैट वुड हैव बीन अनरीजनेबल, because freedom of speech and expression is also an important right which has to be safeguarded along with the object that fake news should not spread. ठीक है, तो essentially ऐसी restriction लगाई जानी चाहिए जो आपके freedom को upheld करे, है ना, जो कि unnecessarily restrictive ना हो. ठीक है, तो अगर किसी lesser restriction से same object achieve हो सकता है, then that should be basically how restrictions should be made. ठीक है, this is of course very theoretical. You can only understand it when you actually deal with real case laws and see ki in which case the court may feel that the restriction is a little excessive. ठीक है, तो restriction should be a balance between a person's individual freedom and the social control that is being sought to be achieved by the restriction. ठीक है, so essentially there has to be a balance. Okay, now it goes without saying that there has to be a direct relationship between the restriction that is being imposed and the object that the government seeks to achieve. ठीक है, तो there has to be a direct relationship कि आप जो restriction लगा रहे हो और आपका ultimate aim क्या है उस restriction को लगाने का, those two should be directly related. ठीक है, अब restrictions को आप किन किन grounds पर judge कर सकते हो. First, nature of right infringed. ठीक है, कि किस fundamental freedom की आप बात कर रहे हो. Secondly, what is the underlying purpose? ठीक है, not simply what the purpose the government is saying, but what in essence is the impact of that restriction. ठीक है, जैसे अभी जब भी sedition वाला केस जब भी डिसाइड होगा, if the government does not withdraw this, ठीक है, sedition के provisions, so the court will ultimately sit on a test of it कि whether sedition is required or not as an offense. ठीक है, so they may look into the underlying purpose of this, because freedom of speech and expression is a guaranteed fundamental right. ठीक है, तो अगर आप उस पे कुछ restriction लगा रहे हो in the form of the offense of sedition, which basically restricts your freedom of speech, then the court will see what is the underlying purpose of this. ठीक है, whether it is to actually prosecute somebody who might be inciting violence in our country, or whether it is only being used to suppress any kind of dissent. ठीक है,
तो किसी भी रिस्ट्रिक्शन का अंडरलाइंग पर्पस क्या है, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच द कोर्ट्स विल लुक इनटू. थर्डली दे विल लुक इनटू कि आप किस ईविल या किस प्रॉब्लम की रेमेडी देख रहे हो. ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द रेमेडी दैट यू आर लुकिंग फॉर, एंड वेदर दिस रेमेडी इज प्रोपोर्शनेट टू द ईविल और नॉट. ठीक है, मतलब बेसिकली आप जो चीज को whatever you are trying to curb or whatever you are trying to prevent from happening, the least restrictive measure should be applied. ठीक है, ये एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है जो आजकल कोर्ट्स काफी यूज भी करते हैं. लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर. ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऐसी होनी चाहिए जो लीस्ट रिस्ट्रिक्ट करती हो किसी एक फंडामेंटल फ्रीडम को. ठीक है, तो ऑफ कोर्स कोर्ट विल लुक इनटू कि वेदर द restriction is proportionate to the evil that is being sought to be remedied or not. Okay. Lastly, the court will also look at the prevailing conditions at that time. Okay. So all of this is theoretical. Only when you actually see case laws, you will understand as to what are the practical implications of all these tests. Okay. Now we discussed in the last class also that अगर कोई रिस्ट्रिक्शन किसी डीपीएसपी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लगाई जाएगी तो दैट विल जनरली बी कंसिडर्ड टू बी अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. ठीक है, तो इवन दो हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट एनफोर्सेबल in a court of law, but that does not mean that they will not have any other value or any other what do you call persuasive impact. ठीक है, तो डीपीएसपीस के ऑब्जेक्टिव को फर्दर करने वाली रिस्ट्रिक्शन इज said to be reasonable. This was held in State of Bombay versus FN Palsara. ठीक है, अब for a restriction to be reasonable, it should also be consistent with Article 14 of the Constitution. ठीक है, Article 14, 19, 21 are related. Okay, so anyway, whenever we are talking about 19, we'll be talking about Article 14 and 21, and vice versa. Another important thing that needs to be understood is that simply a possibility of abuse of power is not a ground to hold a restriction as unreasonable. ठीक है, just because there's a possibility that the executive may abuse the power does not mean that said restriction should be unconstitutional. ठीक है, if the authority does abuse the power, then there are other remedies to it, but that does not mean that the restriction in itself can be said to be unreasonable. Now we come to a very important issue of who has the burden of proof. ठीक है, कि अगर किसी ने मान लीजिए if somebody has challenged a law saying that this unreasonably restricts their fundamental freedom of Article 19, then who needs to prove what? ठीक है, तो अगर if a person challenges the restriction, then the first onus of proving the reasonability is on the state. ठीक है, क्योंकि स्टेट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो स्टेट को पहले प्रूव करना पड़ेगा कि जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो रीजनेबल है. ठीक है, वंस द स्टेट प्रूव्स दैट इट इज रीजनेबल, उसके बाद द ओनस शिफ्ट्स टू द पिटिशनर एंड नाउ द पिटिशनर विल हैव टू शो कि हाउ द रिस्ट्रिक्शन इज अनरीजनेबल. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है. अगर आपको याद हो, हमने एक और बार बर्डन ऑफ प्रूफ पढ़ा था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज. ठीक है, कि अगर कोई किसी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज करता है तो कौन किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है. ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि द बर्डन ऑफ प्रूफ is on the petitioner, is on the person who is challenging the constitutional validity, because there's something called the presumption of constitutionality. ठीक है, हम presume करते हैं कि अगर किसी appropriate legislature ने law बनाया है तो वो उन्होंने अपनी पावर में रहते हुए बनाया, that they had the power to make that law. Okay, तो यहाँ पे you have to understand कि अगर हम restrictions की बात करें, if somebody is challenging any restriction, then the burden is actually on the state. Okay, because generally क्या है, आपके article 19(1) में जो freedoms दी हुई हैं, they are the general freedoms, right? इन पे restrictions लग सकते हैं, but those restrictions can only be reasonable restrictions on the grounds which are mentioned in 19(2) to 19(6). Okay, so it will always be the state which will have to first prove that the restriction is reasonable. अगर वो प्रूव कर देते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है तो फिर पेटिशनर को प्रूव करना पड़ेगा
कि how the restriction is unreasonable. If they fail to prove that, then of course the said law will be upheld as constitutional because the restriction is reasonable. All right. So now we come to Article 19(1)(a), and we will see some important case laws, and we will also see some important implied fundamental rights. ठीक है, हमने शुरू में डिस्कस किया था कि फंडामेंटल राइट्स दो टाइप के हो सकते हैं. ठीक है, बहुत ही इनफॉर्मल सा क्लासिफिकेशन है. One are the express fundamental rights, okay, which are given very clearly, explicitly in Articles 12 to 35. Okay, but then there could also be something called the implied fundamental right, which is not expressly written in the Constitution, but which forms part of the fundamental rights. ठीक है, तो जितना भी Article 19, Article 21 पे, you know that there are so many case laws which have laid down so many fundamental freedoms. For example, सबसे recent क्या है? Right to privacy, right? अब Article 21 nowhere mentions that there will be right to privacy, but the court has still said that this is part of Article 21. So it is an implied fundamental right. Okay, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 19(1)(a) में बहुत बहुत सारी jurisprudence है. We will try to look at it in a very concise manner. ठीक है, अब 19(1)(a) क्या है ये तो आपको पता है, so I'll skip this. We will start with content of freedom under Article 19(1)(a). Okay, so of course 19(1)(a) में freedom of speech, freedom of expression है. उसके अलावा क्या क्या है? ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का और क्या क्या मतलब हो सकता है. ठीक है, तो वन मीनिंग ऑफ इट इज राइट टू नो. ठीक है, दैट अ सिटीजन हैज अ राइट टू नो एंड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, तो आपका राइट टू नो इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज it caters to a lot of things. For example, the whole concept of open government, that the government should be accountable, the government should be transparent in its dealings. All of that is, you know, kind of strengthened by the idea that a citizen has a right to know. Okay? So the concept of open government is derived from right to know or right to acquire information. This was held in the case of Ministry of Information and Broadcasting versus Cricket Association of Bengal. ठीक है, आपका जो RTI Act है, that has also been enacted in furtherance of this understanding. ठीक है, तो वैसे तो RTI Act in itself is it's a legislation in itself, but the fundamental right that they seek to protect is the one that is given in 19(1)(a). Okay, so right to know and right to obtain information is also a fundamental right. Then we have right of citizens to know about the candidates. ठीक है, इसमें बहुत सारे cases हैं. ये हम generally ऐसे अलग से we will not be dealing with it. If there is, you know, any recent case law, then of course we will be talking about this. ठीक है, तो basically आपने सुना होगा something called the criminalization of politics, right? Criminalization of politics is basically where it is alleged, and rightly so, that, you know, there are a lot of candidates with the criminal background, with ongoing criminal cases, who are not only participating in elections, but they're also winning. Okay? So this problem has grown a lot, as is evident from the data that is available on the background, on the antecedents of the candidates. So another important fundamental freedom that the courts have derived from 19(1)(a) is that a person, and you anyway know, ये first वाले fundamental freedom से भी derive होती है कि a person has a right to know. ठीक है? So because a person has a right to know, they also have the right to know the antecedents of the candidates at an election. ठीक है? कैसे antecedents? जो relevant हो. For example, उनके assets कितने हैं, ठीक है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, आर देयर एनी पेंडिंग केसेस, हैव दे एवर बीन कन्विक्टेड, ठीक है, थिंग्स लाइक दैट. ओके, सो a lot of important cases are there on this particular point. They will only become important if, you know, there's a recent case loss. ठीक है, but generally आपके जितने भी
PUCL, PUDR वाले केसेस होते हैं जो भी NGOs फाइल करते हैं, या फिर लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया टाइप के अगर केसेस हैं, लोक प्रहारी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट NGO, ठीक है। तो ये वाले केसेस जनरली क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से डील करते हैं, ठीक है। तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में कोर्ट ने कहा था कि a voter has a right to know the antecedents of the candidates at election and this is a fundamental right, ठीक है। So you have a right to know about the person who you would potentially be voting for, alright? Then we have compelled speech, ठीक है। अब हमने देखा कि right to speech and expression है, ठीक है। There's a freedom that you can speak whatever you want, you can express yourself in whatever manner you choose, but then it also includes compelled speech, ठीक है, that you can also be compelled to exercise your right to speech under 19(1)(a), ठीक है। अब this is a little tricky क्योंकि हम इसके बाद जो next fundamental implied right देखेंगे वो बोलेगा right to remain silent, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि they are both contradictory, they operate in their own spaces, ठीक है। right to compelled speech का मतलब ये नहीं है कि you can be compelled to exercise this right, you know, whenever the government tells you to do so. That is not right, ठीक है। it will of course depend on the purpose for which compelled speech is being exercised, okay। तो for example आपने देखा होगा कि जब आप मूवीज देखने जाते हो तो there are some ads that are always shown, ठीक है। for example that मुकेश का तंबाकू वाला ad, okay, and there may be others as well. Usually I think I've seen only the tobacco ones. So yeah, why is it that, okay, if a cinema hall does not want to display those ads, then why are they being forced to do that, okay? Because compelled speech sometimes may not violate article 19(1)(a), okay? So for example, showing off an educational film or a documentary or an ad along with other films in a cinema does not violate 19(1)(a), and in these cases speech can be compelled, okay? Next important right is freedom of silence, that is right not to speak, because if you have a right to speak then you should also have a right not to speak, ठीक है। ये बाकी फंडामेंटल राइट्स जैसा नहीं है, मतलब आप इसको ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल इफ यू से दैट देयर इज right not to speak, then can we also say there is right not to live, because we have a right to live under article 21, ठीक है। तो that is not the correct understanding because fundamental rights don't work like that. 19(1)(a) में अगर आपके पास पावर है कि आप डिसाइड कर सको what you want to speak, how you want to speak, in what manner you want to express yourself, then you also have the right to decide not to speak, ठीक है। That is also a part of 19(1)(a). And the most important case on this is the Bijoy Manual case. I hope you've heard it. So Bijoy Manual के case में there were some students in a school who belonged to a faith called the Jehovah Witnesses, ठीक है। तो उनके religion में जो भी tenets थे, they used to believe that we will not sing the national anthem, ठीक है। तो इस केस में the court said कि not singing national anthem, deciding not to sing it, cannot be a ground for expulsion from school, ठीक है। तो उनको स्कूल से निकाल दिया गया था and they then challenged this decision. So the court said कि 19(1)(a) के अंदर you have the right not to speak or not to express yourself as well, okay। So Bijoy Manual is an important case. It's an important case here also and in right to religion also, ठीक है। तो article 25 में भी आप Bijoy Manual का केस देखोगे, right? Next comes another important freedom, that is freedom of press. Now this is of course very important. Whenever you talk about freedom of press, we always compare it with the American Constitution, क्योंकि American Constitution में freedom of press is separately mentioned, ठीक है। तो वहां पे freedom of press को expressly Constitution में दिया हुआ है, तो इंडिया में ऐसा नहीं है। 19(1)(a) में freedom of press is not expressly included, but of course as we have seen it is one of the implied fundamental rights, and freedom of press
is very much covered under Article 19(1)(a). ठीक है, बहुत सारे cases हैं. There are, I think, a lot of important cases on freedom of press, but you don't really have to know about all of them. ठीक है, आपको जनरली वो देख के भी समझ आ जाएंगे. ठीक है, जैसे अगर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बेनेट कॉलमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर. सो जनरली you will be able to identify them, and more or less all of them deal with restrictions on freedom of press. ठीक है, in various ways. तो essentially कोर्ट ने उन सारे केसेस में ये कहा है कि किसी भी टाइप की सेंसरशिप ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस विल वायलेट आर्टिकल 19(1)(a). ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोल रहे हो कि न्यूज़पेपर्स कैन नॉट पब्लिश मोर देन 16 पेजेस, ठीक है, देन दैट इज वायलेशन ऑफ 19(1)(a, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर सकते कि किसी न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन कितना होना चाहिए. ठीक है, आप उनके नंबर ऑफ पेजेस डिसाइड नहीं कर सकते, आप उनके नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स बीइंग प्रिंटेड डिसाइड नहीं कर सकते. ठीक है, आप इनडायरेक्टली टैक्स नहीं लगा सकते. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सेइंग दैट if a newspaper is going to publish more than 16 pages, then there'll be an increased tax on that. ठीक है, तो आप directly नहीं बोल रहे हो कि you cannot print more than 16 pages, but what you are indirectly doing is that you are making it more difficult for a newspaper to have a greater volume. ठीक है, so that will also violate 19(1)(a. So बहुत सारे cases हैं, बहुत सारे facts भी हैं, but I hope you get the gist of it, right? तो ब्रिजभूषण के केस में, विच वाज वन ऑफ द फर्स्ट केसेस ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस, कोर्ट ने कहा था कि न्यूज़पेपर्स पे किसी भी टाइप की प्री सेंसरशिप नहीं लगा सकते. ठीक है, कि न्यूज़पेपर्स को कुछ भी पब्लिश करने से पहले दे विल हैव टू फर्स्ट टेक अ परमिशन ऑफ समबडी. ओके, सो प्री सेंसरशिप ऑन प्रेस कैन नॉट बी पुट. राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में बोला था कोर्ट ने कि देयर कैन नॉट बी एनी प्री स्टॉपेज ऑफ पब्लिकेशन. ठीक है, पब्लिकेशन के ऊपर किसी भी टाइप का unreasonable restrictions नहीं लगा सकते which will impact publication of newspapers. Ramesh Thapar versus State of Madras, a very important judgment. इसमें कोर्ट ने कहा था कि freedom of press का मतलब होता है freedom of circulation as well. ठीक है, freedom of circulation मतलब कितने भी न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करने की फ्रीडम. ठीक है, कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट करने की फ्रीडम, whatever volume the newspaper chooses, whatever pages, however information they want to circulate, all of that is part of freedom of press. फिर सकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड बेनेट कॉलमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने कहा था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस आल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम इन द वॉल्यूम ऑफ न्यूज और व्यूज. ठीक है, वॉल्यूम की फ्रीडम भी होती है कि कितना वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी इंक्लूडेड, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पेजेस, ऑल ऑफ दैट इज इंक्लूडेड इन फ्रीडम ऑफ प्रेस. ओके, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने कहा कि आप प्रेस पे कोई एक्सेसिव टैक्स नहीं लगा सकते. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप टैक्स नहीं लगा सकते. ऑफ कोर्स इट विल बी टैक्स्ड. फॉर एग्जांपल देयर विल बी अ टैक्स ऑन द प्रिंटिंग पेपर, देयर विल बी अ टैक्स ऑन द प्रिंटिंग इंक. ठीक है, देयर विल बी टैक्सेस ऑन एवरीथिंग, बट अननेसेसरी या एक्सेसिव टैक्स अगर आप लगा रहे हो ऑन प्रेस, देन दैट विल आल्सो वायलेट फ्रीडम ऑफ प्रेस अंडर आर्टिकल 19(1)(a. ठीक है, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने कहा था कि नो इनडायरेक्ट अटैक कैन बी डन ऑन द प्रेस. ठीक है, तो इस केस में एक्चुअली देयर वाज अ मैटर ऑफ सम रेड्स बीइंग डन ऑन द ऑफिसेस ऑफ एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स, एंड अल्टीमेटली द कोर्ट फाउंड दैट whatever the supposed intention of the raids were, they basically were only conducted to stifle free speech. So essentially indirectly attacking the press will also violate article 19(1)(a. okay, अब आते हैं एक छोटे से separate issue पे which is a part of this, कि whether commercial advertisements will be covered in 19(1)(a or not. ठीक है, अभी कॉमन सेंस से अगर आप देखो तो all kinds of speech will be protected under 19(1)(a. ठीक है, just because commercial है कोई चीज, just because something is not being exercised as a personal freedom, but it is actually being done on a commercial level, does not mean that it will not enjoy the freedom of 19(1)(a. ठीक है, तो शुरू के केस में हमदर्द दवाखाना में कोर्ट ने कहा कि commercial advertisement is not covered under freedom of speech. Okay, तो हमदर्द दवाखाना was later on overruled
और फिर कोर्ट ने कहा कि कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स विल ऑल्सो रिसीव द सेम प्रोटेक्शन एज 19(1)(a. ओके, तो स्पीच चाहे इंडिविजुअल की हो या फिर कमर्शियल लेवल पे हो, all of that will be protected under 19(1)(a. Okay, so Amdar Dawakana versus Union of India is no longer a binding precedent. ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स के केस में कोर्ट ऑलरेडी क्लैरिफाइड दिस. फिर टाटा प्रेस वर्सेस एमटीएनएल में अगेन द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि कमर्शियल स्पीच इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a. ओके, फिर हम आते हैं कुछ मूवीज वाले केसेस पे. ठीक है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है कि फिल्म्स की किस टाइप की सेंसरशिप हो सकती है. ठीक है, अब आपको पता है कि फिल्म्स पे सेंसर लग सकता है. ठीक है, आए दिन किसी ना किसी मूवी पे किसी ना किसी को बुरा लगता रहता है एनीवे, राइट. सो व्हाट अबाउट सेंसरशिप ऑफ मूवीज? कैन मूवीज बी सेंसर्ड? ठीक है, सो द आंसर इज यस. इन फैक्ट आई थिंक देयर इज अनदर लॉ कॉल्ड द सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ पे एनीवे हर मूवी पब्लिक के पास जाने से पहले आपके बोर्ड के पास जाती है और वो उसको देख के रिव्यू करते हैं कि इसमें से कौन से पार्ट सही हैं, कौन से गलत हैं, इस मूवी को क्या सर्टिफिकेट मिलना चाहिए. ठीक है, सो एनीवे एग्जीबिशन ऑफ मूवीज इज अ पार्ट ऑफ 19(1)(a, बट रिस्ट्रिक्शंस कैन ऑफ कोर्स बी इम्पोज्ड ऑन इट. ठीक है, तो LIC वर्सेस मनुभाई डीशा और बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह के केस में कोर्ट ने कहा था कि 19(1)(a इंक्लूड्स द राइट टू एग्जिबिट फिल्म्स. ओके, लेकिन KA अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने ये भी कहा कि फिल्म्स की प्री सेंसरशिप परमिसिबल है. ठीक है, कोई भी फिल्म एयर होने से पहले उस पे सेंसर्स लगाए जा सकते हैं. ठीक है, द बोर्ड में आस्क फॉर सम पार्ट्स टू बी डिलीटेड. द बोर्ड में ऑल्सो डिसाइड द क्लासिफिकेशन ऑफ मूवीज. जैसे आपको पता होगा कि मूवीज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, A and U, राइट. सो such classification, such pre-censorship is permissible. ठीक है, क्योंकि इन सारे केसेस में कोर्ट्स ने आइडेंटिफाई किया कि मूवीज आर अ लिटिल डिफरेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने पहले पढ़ा था कि न्यूज़पेपर्स पे या प्रेस पे प्री सेंसरशिप नहीं लग सकती. ठीक है, सो द कोर्ट आइडेंटिफाइड इन ऑल दीज केसेस दैट मूवीज आर अ वेरी इम्पैक्टफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड दैट इज व्हाई प्री सेंसरशिप इज परमिसिबल फॉर देम. ठीक है, ऑफ कोर्स जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे वो रीजनेबल होने चाहिए, दैट गोज विदाउट सेइंग, बट प्री सेंसरशिप ऑफ मूवीज इज अलाउड. ठीक है, फिर हम आते हैं और राइट्स पे. ये भी बहुत ही लैंडमार्क केस है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल. इस केस में कोर्ट ने कहा था कि राइट टू फ्लाई अ नेशनल फ्लैग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ 19(1)(a. श्रेया सिंघल का केस आपको पता होगा, जहाँ पे सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज चैलेंज्ड, है ना, एंड इट वाज हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑल्सो. उस केस में कोर्ट ने कहा था कि राइट टू पोस्ट इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, फिर आते हैं कुछ स्ट्राइक वाले केसेस कि स्ट्राइक्स करना whether that is permissible under 19(1)(a or not. ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दैट स्ट्राइक्स कैन ऑल्सो बी कवर्ड अंडर 19(1)(b. ठीक है, 19(1)(b which talks about freedom of association, right, but it is also covered under 19(1)(a. ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक्स एटसेट्रा दे आर ऑल्सो फंडामेंटल राइट्स, लेकिन not everybody has those fundamental rights. ठीक है, तो TK रंगराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के केस में कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डू नॉट हैव अ फंडामेंटल राइट टू गो ऑन अ स्ट्राइक. ठीक है, स्टैट्यूटरी राइट हो सकता है. ठीक है, स्टैट्यूट्स में आपके पास राइट हो सकता है कि आप स्ट्राइक पे जा सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो जब चाहे जैसे चाहे दे कैन गो ऑन अ स्ट्राइक. ओके, सिमिलरली हरीश uppal के केस में कोर्ट ने कहा था कि लॉयर्स डू नॉट हैव अ फंडामेंटल राइट टू गो ऑन अ स्ट्राइक. ओके, तो ये 2 केसेस जनरली पूछे जाते हैं. ठीक है, फिर कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अपनी फ्रीडम इंडिया में एक्सरसाइज कर सकते हो, आप अपनी फ्रीडम कहीं भी एक्सरसाइज कर सकते हो. ठीक है, सो नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स नॉट लिमिटेड टू द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया,
but you can use this fundamental freedom outside India also. ठीक है? It will of course be susceptible to different jurisdictions, right? तो वो अलग बात है, but you do have this freedom. फिर हम आते हैं ट्रायल बाय मीडिया पे, ठीक है, कि freedom of press है under Article 19(1)(a), we know that, but that does not mean that it will include trial by media, ठीक है? तो मीडिया के पास फ्रीडम है कि वो प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट कर सकती हैं, पब्लिश कर सकती हैं, बट द कोर्ट्स कैन ऑल्सो इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन दैट, ठीक है? तो आपने जनरली देखा होगा कि एक बार मैटर सब जुडिस हो जाता है, यानी कि व्हेन द कोर्ट्स आर कंसिडरिंग इट, समटाइम्स दे मे इम्पोज अ गैग ऑर्डर, है ना, जहाँ पे मीडिया इज नॉट अलाउड टू पब्लिश एनीथिंग अबाउट दैट मैटर फॉर सम टाइम, ठीक है? द रीजन इज सिंपली टू not allow judges and advocates and other parties to be influenced by public opinion and by media trial. So generally courts agar chahe to they can prohibit or restrict the reportings of media in certain cases. So all of this was with respect to Article 19(1)(a. बहुत बड़ा है Article 19(1)(a, तो और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है? But by and large these are the implied fundamental freedoms that are there under Article 19(1)(a. ठीक है, अब हम आते हैं 19(2) पे, जो रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है. अब इसमें से कुछ ही समझने वाले हैं, ठीक है? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट क्या है, या पढ़ सकते हो, है ना, जहां पे भी सिक्योरिटी बेसिकली थ्रेट पे हो. ओके, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ था. पब्लिक ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? पब्लिक ऑर्डर में पब्लिक ऑर्डर वाज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट आफ्टर द रोमेश थापर केस, ठीक है? रोमेश थापर के केस के पहले तक in 1950 of course public order was not one of the grounds of restriction, ठीक है? तो इस केस में कोर्ट ने कहा, इस केस में बेसिकली they were trying to argue कि even though public order is not given explicitly but public order को हम security of the state में ही covered मान सकते हैं. तो court basically refused the contention and the court said security of state and public order are two different things. Okay, so to undo that, the parliament added the first amendment and they added public order in it. Okay. Now we come to another important round, that is decency or morality. ठीक है, बहुत important है. आप ये cases I think IPC में भी पढ़ते हो when you talk about offenses which deal with obscenity, right? तो इसके लिए दो cases important हैं, रंजीत उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है? दोनों में दो टेस्ट दिए हुए हैं अलग अलग, ठीक है? रंजीत उदेशी के केस में एज यू कैन सी इट्स एन ओल्डर केस लॉ. इस केस में कोर्ट ने अप्लाई किया था पुराना टेस्ट, दैट इज हिकलिन टेस्ट, ठीक है? इंग्लैंड में देयर वाज एन इंपॉर्टेंट केस लॉ कॉल्ड आर वर्सेस हिकलिन, जहां पे कोर्ट ने ले डाउन किया था कि कोई भी चीज ऑब्सीन या इनडिसेंट कब मानी जाएगी, ठीक है? तो इंडिया में भी रंजीत उदेशी के केस में दे अप्लाइड द हिकलिन टेस्ट. अब हिकलिन टेस्ट क्या कहता है? हिकलिन टेस्ट बेसिकली कहता है कि अगर आपको डिसाइड करना है कि कोई मटेरियल इनडिसेंट है कि नहीं, ठीक है, वेदर इट इज इनडिसेंट, वेदर इट इन्वोक्स लेस्चिवियस थॉट्स, ठीक है, बहुत ही विक्टोरियन टर्म है, इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक, ठीक है? तो आप कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है? तो इसमें कोर्ट ने कहा था हिकलिन टेस्ट के हिसाब से कैसे डिसाइड करते हो, आप ये देखते हो कि वेदर पीपल हु हैव एक्सेस टू दिस मटेरियल वेदर दे कंसिडर इट टू बी इनडिसेंट और नॉट, ठीक है? तो एसेंशियली यहाँ पे किसका डिसीजन होता है? इट इज द डिसीजन ऑफ एन एवरेज रीडर, ठीक है? इफ एनी वन रीडर ऑल्सो फाइंड्स दैट थिंग टू बी इनडिसेंट, then that will mean that that particular thing is in fact indecent, okay? So whether the material invokes these thoughts in the minds of the public who may have access to such material is what the basis of Hicklin test was. Now the problem with Hicklin test is that it's very easy to offend anybody, right? Like even if let's say 5 people are offended by something and the rest of the population is not, the Hicklin test may still find that thing to be indecent. Okay, so that is of course not the correct test, especially not now when everybody seems to be offended at literally everything. Okay,
तो अवीक सरकार के केस में कोर्ट ने कहा कि हिकलिन टेस्ट पुराना हो गया, ठीक है, ये अप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज इट इज नॉट द करेक्ट टेस्ट। तो अवीक सरकार के केस में कोर्ट ने कहा, इस केस में बेसिकली इशू ये था कि देयर वाज अ न्यूड फोटो ऑफ अ वुमन इन अ मैगजीन एंड द कोर्ट वाज डिसाइडिंग कि वेदर दैट इज इनडिसेंट और नॉट। तो कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले तो कोई भी चीज इनडिसेंट है कि नहीं वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। व्हेन एज द सोसाइटी ग्रोज people become more mature and of course they don't find the same things to be obscene as they may used to find, let's say 20 years back, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट से डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। हिकलिन टेस्ट इज आउटडेटेड, व्हाट वी विल अप्लाई इज कि अभी सोसाइटी में कोई भी अगर हम एवरेज पर्सन लें, एवरेज रीजनेबल पर्सन, तो वो इस सोसाइटी में व्हाट इज द व्यू पॉइंट ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड्स पे हमें डिसाइड करना होगा, ठीक है। यानी कि 2022 में व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ मेच्योरिटी इन आवर सोसाइटी एंड व्हाट डज एन एवरेज पर्सन मेक ऑफ इट, एन एवरेज रीजनेबल पर्सन, है ना। एक एवरेज रीजनेबल पर्सन इस मटेरियल के बारे में क्या सोचेगा, दैट इज व्हाट अवीक सरकार केस लेट डाउन, ठीक है। जैसे अभी पूरी रणवीर सिंह वाली कंट्रोवर्सी हो रही है दैट ही गेव सम इंटरव्यू इन अ पेपर मैगजीन and there were some nude photos of him and people just got crazy about it, right? Not people but like some, of course, imbeciles, and now they're challenging कि अरे this is indecent, this should be pulled down, this is offending the modesty of women, I don't know how, okay। तो इसमें अगर हम contemporary community standard test लगाएं तो there's absolutely nothing which is indecent about it, right? Like maximum if you don't like it you don't have to read it, nobody is going to shove it in your face, so you do have that option. So contemporary community standard test is the correct test to apply now, okay। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको ऑलरेडी पता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पर्पस क्या है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पर्पस सिर्फ कोर्ट की डिग्निटी प्रोटेक्ट करना नहीं होता है, बट इट इज ऑल्सो देयर टू प्रोटेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ओके, सो दैट पीपल continue to have faith in the judicial system, because only when they have faith will it actually work. So contempt of court is also one of the grounds. Then you have defamation. Defamation आपको पता है क्या होता है, सुब्रमण्यन स्वामी का केस भी मैंने आपको बताया था जहां पे कोर्ट ने कहा था कि defamation as a criminal offense does not violate 19(1)(a), ठीक है। क्यों? क्योंकि it is a reasonable restriction on a person's right to speech, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि if a person A has a right to speech and if he is defending a person B, ठीक है, तो that person B also has a right to reputation under Article 21, ठीक है। तो we will have to balance these two rights कि freedom of speech and freedom of reputation, इन दोनों को अगर हम balance करें तो defamation as a criminal offense is a reasonable restriction. Incitement to an offense was also added later on. Sovereignty and integrity of India was added by the 16th Amendment 1963. Okay. So that is basically your Article 19(2). ठीक है, बीच में अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज डू आस्क। Alright. Now we come to 19(1)(b) and 93, ठीक है। बाकी सारे अब उतने ज्यादा उसमें मटेरियल नहीं होगा। 19(1)(b) किसकी बात करता है? राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है। अब एज आई सेड कि ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल फ्रीडम्स आपस में एक्सक्लूसिव होंगे कि अगर 19(1)(a) में कुछ कवर्ड है तो 19(1)(b) में नहीं हो सकता, ठीक है। 19(1)(b) इज सेड टू बी अ corollary of 19(1)(a) ओनली, क्योंकि 19(1)(a) में अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो आपके पास ये फ्रीडम भी है कि आप इकट्ठे होके यू कैन कलेक्ट टुगेदर एंड यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, ठीक है। जैसे हमने देखा राइट टू प्रोटेस्ट, दैट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। सो 19(1)(b) फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 19(1)(a) ओनली, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 19(1)(b) में जो दिया हुआ 19(1)(a) में कवर नहीं हो सकता, इट कैन वेरी वेल बी देयर। सो बेसिकली राइट टू होल्ड असेंबली, public meetings, taking out processions, taking out demonstrations, all of this is part of 19(1)(b), ठीक है। दो कीवर्ड है यहाँ पे, वन
कि राइट टू असेंबली पीसफुल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इट हैज टू बी विदाउट आर्म्स, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यू आर अलाउड टू कैरी arms or guns and other weapons. That is not your fundamental freedom, ठीक है। You cannot also claim that you will be destroying public property and you will be damaging private property as well and claim it as a fundamental freedom under 19(1)(b). That is also not permissible because the assembly has to be peaceful and it has to be without arms, okay। So of course ये fundamental freedom absolute नहीं है। 19(3) में तो राइट रिस्ट्रिक्शंस दिए ही हुए हैं, बट 19(1)(b) में भी रिस्ट्रिक्शंस इनबिल्ट है कि असेंबली पीसफुल होनी चाहिए और अनार्म्ड होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा 19(3) में जो दिया है 19(3) के रिस्ट्रिक्शंस तो अप्लाई होंगे ही, ओके, ठीक है। 2 ग्राउंड्स पे हो सकते हैं, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। तो 2 ही ग्राउंड्स हैं फॉर रिस्ट्रिक्शंस। अब कोर्ट ने हिम्मत लाल के केस में कहा था कि रिस्ट्रिक्शन रेगुलेटरी होनी चाहिए ना कि प्रोहिबिटिव। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि राइट टू असेंबल इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। आप राइट टू असेंबल पे रेगुलेशंस लगा सकते हो। आप बोल सकते हो कि अगर आपको लेट्स से 100 से ज्यादा लोगों की अगर आपको पब्लिक गैदरिंग करनी है तो यू विल हैव टू टेक परमिशन ऑफ द कमिश्नर, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो। इससे क्या होगा, ये रेगुलेटरी कहलाएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि 100+ लोगों की गैदरिंग इज नॉट परमिसिबल ओनली, ठीक है। ये कि हम इसे परमिट ही नहीं करेंगे, दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि जो भी आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो वो रेगुलेटरी होनी चाहिए, कि आप उसे रेगुलेट करने के लिए लगा रहे हो ना कि प्रोहिबिट करने के लिए, ठीक है। तो हिम्मत लाल वर्सेस पुलिस कमिश्नर के केस में बॉम्बे पुलिस एक्ट का कोई रूल था, रूल 7, which basically put this kind of a restriction. It was prohibitive in nature. It also took away the court's judicial power to review it, and that is why the court said कि क्योंकि यहाँ पे आप complete ban लगा रहे हो assembly पे, that is why it violates article 19(1)(b). ठीक है। अब दिस ऑल्सो गोज विदाउट सेइंग, वैसे तो कि राइट टू होल्ड असेंबली का मतलब ये नहीं है कि आप राइट टू होल्ड असेंबली किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे एक्सरसाइज करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेलवे की किसी प्रॉपर्टी पे सम पीपल वर प्रोटेस्टिंग, ठीक है। आई थिंक दे वर द एम्प्लॉइज ओनली, ठीक है। सो दे बेसिकली सेड कि आप यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो दिस वाज हेल्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल बाय द कोर्ट बिकॉज द कोर्ट सेड कि यू हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट बट दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन यूज इट एनीवेयर। आप ये शाहीन बाग वाला जो केस था आपका, वो भी आप याद कर सकते हो, क्योंकि वहां पे भी कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट बट ब्लॉकिंग पब्लिक वेज दैट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल फ्रीडम है, लेकिन आप इसे कहाँ कर सकते हो और कहाँ नहीं कर सकते हो, दैट कैन बी रेगुलेटेड। Now we come to the next fundamental freedom, that is 19(1)(c), which is right to form association, unions or cooperative societies, ठीक है। इसमें cooperative societies बाद में ऐड हुआ था 97th Amendment 2011 के थ्रू, सो ये अभी भी वेरी मच कॉन्स्टिट्यूशन, इवन तो राजेंद्र शाह के केस में कोर्ट ने 97th अमेंडमेंट को कुछ पार्ट को उसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, बट उसमें ये वाला अमेंडमेंट इज नॉट इंक्लूड, ठीक है। अब राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट टू फ्री स्पीच ओनली, ठीक है। आप किसी भी टाइप के एसोसिएशन बना सकते हो, कंपनी बना सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो, ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल पार्टीज, सोसाइटीज, ओके, एनीथिंग कैन बी डन। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन का मतलब होता है राइट टू वॉलंटरीली बी अ मेंबर, राइट नॉट टू बी अ मेंबर, राइट टू कंटिन्यू एज अ मेंबर एंड राइट नॉट टू कंटिन्यू एज अ मेंबर, ठीक है। बेसिकली इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू एसोसिएट, ओके। रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, 3 हैं, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, ठीक है। फिर कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देना, ठीक है। जैसे आपको पता है हमारे यहाँ जो भी ऐसे नेक्सलाइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बेसिकली कोर्ट ने इनवैलिडेट कर रखा है, दे आर डिक्लेयर्ड एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। तो बेसिकली कोर्ट सेड कि डिक्लेयरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंडर एनी ऑफ द लॉज, लेट्स से अंडर कोटा,
दैट इज नॉट वायलेटिव ऑफ 19(1)(c). ठीक है, वो लोग क्लेम नहीं कर सकते कि दे हैव अ राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, क्यों? बिकॉज इट इज वायलेटिंग द रिस्ट्रिक्शन ऑफ sovereignty and integrity of India. फिर स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस वीजी राव के केस में कोर्ट बेसिकली टॉक्ड अबाउट कि जो मद्रास का एक अमेंडमेंट एक्ट था रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट में, दैट वाज बीइंग चैलेंज्ड। ओके, so a society which was registered under this act challenged the validity of Madras Amendment Act. Under this act, the state government was empowered to declare any association as unlawful without allowing judicial review. ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि not allowing judicial review and declaring an organization as unlawful is unreasonable restriction of 19(1)(c). ठीक है, तो कोर्ट basically struck it down, saying that you have to give them at least a power of judicial review. Okay. फिर of course one more thing comes into mind कि right to form association is a fundamental freedom, but right to recognition is not. ठीक है, आपके पास right है, आप association बना सकते हो, but उस association को state का recognition मिलेगा कि नहीं, that is something which is not a fundamental right. ठीक है, जैसे for example मान लीजिए आपने एक ट्रेड यूनियन बनाई। ठीक है, you are the employees of let's say XYZ company and you have formed a trade union. तो does that mean कि आपके employer उस trade union को recognize करेंगे? Not really. Okay, it of course also depends on the statute. Statute में जैसे लिखा हुआ है कि किस केस में recognition मिलता है, that of course will apply, but you do not have a fundamental freedom to get it recognized. Okay, so recognition is not a fundamental freedom. Association is definitely a fundamental freedom. Okay, for example आपने एक company बनाई under the Companies Act, ठीक है, but you have not really complied with all the provisions of the Companies Act 2013. So would that mean कि you are still entitled to call this entity as a company registered under the Companies Act? No, because you have not complied with the statutory requirements. Now we come to 19(1)(d), 19(1)(e). ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम टू रिसाइड। ठीक है, आप कहीं भी जा सकते हो इंडिया में और आप कहीं भी रिसाइड कर सकते हो। इसमें दो ही रिस्ट्रिक्शन है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। ओके, राइट टू मूव फ्रीली इंक्लूड्स राइट टू यूज रोड्स और हाईवेज। ठीक है, इसीलिए अगर रोड ब्लॉकेट्स होंगे that would mean that right to move freely is also being violated. ठीक है, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस भी हमें पता है क्या होता है। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस में आप ये थर्ड पॉइंट देख सकते हो, जहां पे यूपी आवास एवं विकास परिषद के केस में कोर्ट ने कहा था कि राइट टू रेसिडेंस एंड राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू शेल्टर ऑल्सो। ठीक है, तो राइट टू शेल्टर इज ऑल्सो an important fundamental right under Article 19(1)(e) also and under Article 21 also. तो 19(1)(d), 19(1)(e) में ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है 19(1)(g). ठीक है, 19(1)(g) जो बात करता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस की। ठीक है, अब सी इन चार टर्म्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, आप अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए यू कैन अंडरस्टैंड, बट ऐसे जनरली एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं, बट उन्होंने चार टर्म्स यहाँ पे यूज किए 19(1)(g) में, है ना। क्या क्या? प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। ठीक है, इनके अपने अपने अलग मतलब होते हैं, लिटरल मीनिंग्स। ठीक है, ऐसा कुछ अलग लीगल मीनिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इनके लिटरल मतलब है। एंड द ओनली रीजन व्हाई सच वाइड 4 terms have been used is to just ensure that this fundamental right is properly upheld. ठीक है, ताकि ये हर सिचुएशन में जहाँ पे हम किसी के लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं, इट कैन अप्लाई। ओके, ऑक्यूपेशन का क्या मतलब होता है? ऑक्यूपेशन मीन्स एनी एक्टिविटी बाय व्हिच अ पर्सन इज ऑक्यूपाइड और एंगेज्ड। सो फॉर एग्जांपल अ जर्नलिस्ट कैरीज ऑन हर ऑक्यूपेशन अंडर 19(1)(g). प्रोफेशन ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है एन ऑक्यूपेशन व्हिच रिक्वायर्स द एक्सरसाइज ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि आप जो LLB कर रहे हो वो एक प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है, सारे कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं होते हैं, बट LLB इज अ प्रोफेशनल कोर्स। ठीक है, सो दैट इज प्रोफेशन। बिजनेस का मतलब होता है कि यू आर इनटू द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और
consumption of something. ठीक है? So business means any activity which involves production, distribution, consumption of wealth, and production and availability of material resources. Sorry, services. Trade का मतलब होता है where you are selling or purchasing something. ठीक है? As I said, कोई ऐसे legal implication नहीं है, and neither is it something which can be asked. It's just that you should know the difference for yourself. Okay? सोडन सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के केस में कोर्ट ने बताया था इन चारों टर्म्स का मतलब. ओके, फिर हम आते हैं स्कोप पे कि अब 19(1) का क्या स्कोप है. ठीक है, तो पहला तो ये है कि राइट टू स्टार्ट अ बिजनेस और क्लोज अ बिजनेस इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट. ठीक है, क्यों? क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर लॉज दैट यू हैव टू कंप्लाई विद. ठीक है, तो right not to start or not to close down a business, that is not absolute and it can be restricted. ठीक है, तो एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सेक्शन 25O ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट वाज चैलेंज्ड. ठीक है, इस केस में प्रोविजन ये था कि अगर किसी को अपनी फैक्ट्री या इंडस्ट्री बंद करनी है, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी. ठीक है, अब यहाँ तक तो चलो ठीक है, बट उसमें ये भी था कि गवर्नमेंट चाहे तो परमिशन रिफ्यूज कर सकती है. ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते टू कैरी ऑन अ बिजनेस व्हेन दे कैन नॉट इवन पे मिनिमम वेजेस. ओके, तो कोर्ट ने कहा कि फोर्सिंग समबडी टू कंटिन्यू अ बिजनेस इज गोइंग टू वायलेट आर्टिकल 19(1)(g). अब राइट टू कैरी ऑन प्रोफेशन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, तो आपको पता होगा जैसे कि कई सारी एक्टिविटीज होती हैं जिन पे जो या तो बैंड होती हैं या फिर जो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसकी बात करो, गैम्बलिंग की अगर आप बात करो. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू ओपन अ कैसीनो वेयर गैम्बलिंग कुड बी डन, ठीक है, कैन यू डू दैट? नॉट रियली. व्हाई? बिकॉज इट इज एन एक्टिविटी विच इज supposed to be res extra commercium. ठीक है, रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम का मतलब होता है आउटसाइड कॉमर्स. आउटसाइड कॉमर्स मतलब ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप डील नहीं कर सकते, जिसको आप you cannot basically carry on any business in it because either it is anti-social or it is dangerous. ठीक है, तो किसी भी टाइप की हो सकती है, वो एक कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, उनकी मोरालिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो किस चीज को रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम मानते हैं. ठीक है, तो सेल ऑफ लिकर कुछ केसेस में रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ बिहार में सेल ऑफ लिकर इज नॉट परमिसिबल, तो वहां पे सेल ऑफ लिकर इज अ रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम एक्टिविटी. ठीक है, बट जनरली देयर इज नो राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और ट्रेड इन लिकर ऑल्सो, है ना. या ये दिस कैन आइदर बी प्रोहिबिटेड और इट कैन बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट. ठीक है, ये बोला था कोडे डिस्टिलरीज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में. कोर्ट ने MH यानी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस थे. इन केसेस में 2013-2019 के दो इंपॉर्टेंट केस हैं जहां पे कोर्ट ने कहा था कि डांसिंग इन बार्स, ठीक है, दैट इज नॉट रेस एक्स्ट्रा कमर्शियल. ठीक है, तो द कोर्ट बेसिकली सेड कि जो बार डांसर्स होते हैं वो अपनी जो एक्टिविटी कैरी ऑन कर रहे हैं, दैट इज नॉट रेस एक्स्ट्रा कमर्शियल. Then you have right to impart education. 19(1)(g) में you have the freedom to establish educational institutions also. ये कोर्ट ने बोला था दो केसेस में, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हो, लेकिन यू डू नॉट हैव द राइट टू आस्क फॉर रिकॉग्निशन. ठीक है, फिर विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीट ट्रेडिंग कोर्ट ने कहा कि आप स्ट्रीट्स पे यू कैन सेट अप योर शॉप्स, बट दैट राइट इज नॉट एब्सोल्यूट. देयर इज नो राइट फॉर यू टू चूज द प्लेस इन स्ट्रीट ट्रेडिंग और टू डू इट एट अ पर्टिकुलर प्लेस. ओके, तो सोडन सिंह के केस में कोर्ट बेसिकली आस्क्ड द अथॉरिटीज टू फॉर्म प्रॉपर स्कीम्स फॉर रेगुलेटिंग द हॉकिंग बिजनेस. ओके, अब 19(1)(g) में राइट टू प्रोफेशन में राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट भी कवर्ड होता है. राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑल्सो. ठीक है,
तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में कोर्ट ने कहा था कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन इन देयर वर्क प्लेसेस violates their fundamental right under Article 19(1)(g). Okay? So if you're not providing safe working spaces for women in your organization, that is violative of their fundamental right of 19(1)(g). Okay? फिर हमने देखा कि 19(6) में रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें से एक रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि आप प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड वर्सेस बीसीआई में जब चैलेंज हुआ था, जहां पे एक रूल होता था बीसीआई का कि जो 45 इयर्स से ऊपर के इंडिविजुअल्स हैं वो दे कैन नॉट एनरोल एज एडवोकेट्स, ठीक है, तो कोर्ट स्ट्रक डाउन दिस रूल एंड सेड कि दिस रूल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट्स आर्बिट्ररी, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन के साथ एज की रिक्वायरमेंट क्यों रख रहे हो, दैट इज समथिंग विच वाज हेल्ड टू बी आर्बिट्ररी बाय द कोर्ट्स। अब इसमें किस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, बहुत ही वाइड टर्म है, इट कैन इंक्लूड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इट कैन इंक्लूड पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सिक्योरिटी, मॉरल्स, इकोनॉमिक वेलफेयर एटसेट्रा, ठीक है। सो बेसिकली इन सारे ग्राउंड्स पर 19(1)(g) के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कैन बी प्लेस्ड। 19(6) में रिस्ट्रिक्शन कैन बी एब्सोल्यूट ऑल्सो, ठीक है। हमने पहले कहीं पढ़ा था कि फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन या राइट टू असेंबल, उसमें आप प्रोहिबिट नहीं कर सकते, है ना, रिस्ट्रिक्शन सिर्फ रेगुलेटरी हो सकती है, प्रोहिबिटिव नहीं हो सकती। लेकिन 19(6) में जो रिस्ट्रिक्शन है वो प्रोहिबिटिव भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में अभी सेल ऑफ लिकर इज परमिसिबल, राइट, आप लाइसेंस लेके आप बाकी कंडीशन से कंप्लाई करके यू कैन स्टार्ट सेलिंग लिकर। लेकिन कल अगर वो मान लीजिए एक पॉलिसी ले आए जहां पे वो बोले कि सेल ऑफ लिकर इन मध्य प्रदेश इज ऑल्सो बैंड नाउ, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन, ठीक है, दैट विल टोटली प्रोहिबिट people from carrying on this trade, okay? But that is reasonable under Article 19(6). Okay? So all in all, this is the discussion on Article 19. There is of course a lot of things on Article 19 which you will get to see and understand when we actually read case laws. Okay?